Hello. All right, good afternoon, everyone. So, today we are having our second lecture of electrochemistry, and I hope everyone has seen the video lecture and doubts आप लोगों ने डाल दिए हैं ठीक है ओके कुछ तो आर्टिस्टिक चेंजेस कर दिए गए हैं गूगल स्प्रेडशीट में एंड ओके एफबीओ एंड एफबीएस दोनों में डाउट है ठीक है सो एज आई सेड लास्ट टाइम ऑल्सो कि वीडियो लेक्चर 3 जो आप लोगों ने देखा होगा it was something which had a lot of numerical content ठीक है प्रॉब्लम सॉल्विंग तो एक कॉन्सेप्चुअल लेवल पर सेम ही थी but it would have been quite exhausting in terms of the numerical questions that were there
All right, so let's start today's discussion. पहले conceptual doubts देख लेते हैं. वैसे from the perspective of the concepts that were covered in lecture 3, so उसमें concept तो एक ही था, that was Nernst equation, and rest were applications related to it. So observe करना. Okay. All right. Now अब हम जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं एफबी और एफबीएस में, उन क्वेश्चंस के पीछे कंसिस्टेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथोडोलॉजी है. आप लोग ध्यान से इस मेथोडोलॉजी के ऊपर फोकस करना, एंड बेस्ड ऑन इट आप नोटिस करना दैट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इन एफबी एंड एफबीएस are going to be solved by this methodology. So when the question comes in front of you regarding the Nernst equation, तो उसमें स्टेप्स एक एक करके फॉलो करोगे तो आपको क्लैरिटी मिलेगी इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चन में क्या दिया गया है एंड क्या पूछा जा रहा है. सो स्टेप 1 would be something as simple as writing the reactions. ठीक है, so you read the cell, जो भी उसका representation आपके सामने होगा, and then based on that write the reactions, write the anode reaction, write the cathode reaction, and उसके बेसिस पर उन दोनों को ऐड करके ओवरऑल सेल रिएक्शन सच दैट द इलेक्ट्रॉन्स गेट कैंसल्ड आउट. ये लिखने से आपको n का वैल्यू मिल जाएगा, एज एन एक्सप्रेशन मिल जाएगा n का एज वेल एज q का. q स्टैंड्स फॉर रिएक्शन कोशेंट. इन दोनों को आप यूज करके आगे बढ़ सकते हो. अभी हो सकता है कि ये दिया हुआ हो सकता है कि इसी में आपका अननोन हो. ठीक है, वंस दिस इज देयर, ठीक है, इनफैक्ट let me kind of put it in the next step so that it is not one step loaded completely. You calculate n and q. ये फिगर आउट हो जाए तो उसके बाद स्टेप 3 पर आ जाओ, which is calculate E naught of the cell. ठीक है, इसका फॉर्मूला रहेगा आपका SRP कैथोड minus SRP anode. So sometimes this information might be available directly or indirectly. ठीक है, and then as a last step, as a step 4, you can say apply Nernst equation. ठीक है, Nernst equation आप अप्लाई कर दोगे, E cell will be equal to E naught cell minus RT by NF ln Q. और अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन हो रहा है तो हम लोग इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं, 0.095 अपॉन n into log Q. So this is something which will be the problem solving method जो आप नोटिस करोगे हम लोग आप क्वेश्चंस में कंसिस्टेंटली यूज करते जाएंगे. ठीक है, सो थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इतना ही था चैप्टर में.
as in the video lecture 3. अब इसकी एप्लीकेशंस हैं जो कि हम लोग डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं. सो बिफोर आई स्टार्ट टेकिंग द डाउट्स, आप में से किसी को कुछ कॉन्सेप्चुअल डाउट पूछना है तो लेट मी नो. नाउ I have changed the settings of the meeting to keeping everyone on mute. What you can do is write down your doubt in the chat box. कोई डाउट है, किसी को कुछ पूछना है? Okay, so I've got one doubt. So it is going to be primarily a doubt lecture today. I am going to discuss the doubts that are there from FBO and FBS जो आप लोगों ने बताए हैं. ठीक है, थ्योरी का पार्ट ज़्यादा था नहीं लेक्चर 3 के अंदर. स्टार्टिंग पार्ट था नर्स इक्वेशन का. That is something that I have already spoken about. And रहा सवाल प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का, तो मैंने आप लोगों के साथ में अभी शेयर कर दिया है. This is something that is consistently going to be used when solving these FBO and FBS के questions. Okay, then there is a doubt that how do we know whether to take the value of F? So that is something, आप F का वैल्यू लोगे अगर आपको टेम्परेचर कुछ और दिया होगा तो. अगर 298 दिया हुआ है तो R, T और F का मिलाकर this is the value that we have written. ठीक है, otherwise you use the value of F as 96500. Yes, 96500 SI units में, everything goes here in SI units. Then somebody has asked me SRP directly या indirectly मिलेगा. So this is something आप notice करोगे अभी FBS में एक दो questions हैं जहाँ पे I will highlight कि आपको indirectly कैसे SRP मिला हुआ है. ठीक है, I think I'll tell the question number also. आप लोगों का डाउट होगा most probably उसमें से. So if you look at FBS, I'll tell which question number. Give me 1 second. FBS question number 30 इसमें रहेगा ये. अभी आपने डाउट पूछा होगा तो हम लोग डिस्कस करेंगे. हाँ, EMF of cell is E cell only. EMF stands for electromotive force, but that is something which अभी के लिए आप E cell मान के चल लो. ठीक है, मतलब see there are certain finer aspects to it. There are certain details to it from the point of view of physics, but अभी के लिए आपको केमिस्ट्री में उतनी डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है. हाँ, सो देर आर क्वेश्चंस जिसमें एसिड्स का के बी का कैलकुलेशन है, वो मैं आपको अभी एग्जांपल्स के थ्रू समझा ही दूंगा. हाउ विल इट लुक लाइक. Okay, so let's then start with the doubts. नहीं, आपका TWT कैंसिल हो गया ना, केमिस्ट्री का TWT नहीं है अभी संडे को. दैट इज समथिंग दैट हैज बीन कैंसल्ड. सम क्वेश्चंस में आंसर्स माइट नॉट मैच एग्जैक्टली, थोड़ा सा आसपास है तो चलेगा, क्योंकि वो 0.059 को 0.06 ले लेते हैं कई बार, तो आंसर थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है. दैट्स ओके. ऑलराइट, सो लेट्स
स्टार्ट विद द FBO वाला पार्ट. सो FBO में आपका होमवर्क था 34 से 50th क्वेश्चन तक का, एंड देन सम 57 58 क्वेश्चन. ओके, 34 से देखते हैं. सो वी हैड डाउट्स 37. लेट्स सी. The value of equilibrium constant for the reaction. So 37th question actually ऊपर का जो reaction है उसी का part है. अब I think what you would be struggling with is the value of n. तो यहाँ पे notice करना SN2 plus, ठीक है, ये आपका एनोड का रिएक्शन होगा. ओके, सो लेट मी राइट डाउन द रिएक्शंस. एनोड का रिएक्शन होगा SN, नहीं इनफैक्ट माय बैड, क्रोमियम होगा. जस्ट अ सेकेंड. Chromium solid is giving Cr3 plus aqueous plus 3 electrons, and cathode is giving SN2 plus aqueous plus 2 electron is giving SN solid. अब जब आप इनको ऐड करोगे तो आपको इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सॉरी इसको 2 से और इसको 3 से, और फिर आप ऐड करोगे तो आपके पास सेल का रिएक्शन आएगा, which will be 2 times Cr solid plus 3 times SN2 plus is giving 2 times Cr3 plus aqueous plus 3 SN solid. Now this is something which is a step 1, and now from this you will get the step 2. N का value 6 मिलेगा and Q का value will be chromium का concentration Cr3 plus का concentration square, ठीक है, Cr3 plus का concentration का square upon SN2 plus के concentration का cube. अब आपको वैसे तो इसमें ई सेल ही निकालना है, नॉट ई सेल, इनफैक्ट आपको निकालना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. ओके, सो आपने ई नॉट निकाल लिया. इसमें से ई नॉट सेल क्या हो जाएगा, SRP कैथोड माइनस SRP एनोड. सो माइनस 0.14 माइनस 0.74. सो इससे आ जाएगा ये 0.6 वोल्ट. एंड नाउ ई नॉट सेल is equal to RT by NF ln Q, sorry ln K. तो अब इससे आप K निकाल लो. ये 0.6 यूज करना है. देन अभी दिया नहीं है कुछ टेम्परेचर, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड ही मान के चलो. ये नहीं, क्वेश्चन में लिया हुआ है 25 डिग्री सेंटीग्रेड. तो ये 0.059 अपॉन n का वैल्यू यहाँ पे 6 रहेगा इनटू log K. तो अब आप सॉल्व करोगे तो आपका K का एकदम करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है. देन यही चीज से आप डेल्टा जी नॉट भी निकाल सकते हैं ना. डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस NF E नॉट. ये 38th क्वेश्चन हो जाएगा. तो वापस से आई थिंक द ओनली प्रॉब्लम दैट हैपेंड वाज दैट आपको शायद n का कैलकुलेशन करना नहीं आया. सो इससे आपका जूल पर मोल आएगा, तो आप उसको फिर किलो जूल पर मोल में कन्वर्ट कर लेना डिवाइड बाय 1000 करके, तो आपका आंसर मैच करेगा. ओके, then 40th question is something similar to what you would have done in the previous questions also. ये हमारा इनफैक्ट लेक्चर 2 से ही रिलेटेड है. दिस इज समथिंग जहां पर we talk about how to manipulate reactions and
देन अकॉर्डिंगली राइट डेल्टा जी नॉट, फिर उससे आप ई नॉट लिखते हो। ठीक है, तो ये क्लास नोट्स में भी कराया गया है मल्टीपल टाइम, बट ठीक है चलो एक बार मैं कर देता हूँ। और Fe3+ इलेक्ट्रॉन गिविंग Fe2+, ठीक है, इसको फर्स्ट रिएक्शन बोल लो और इसका E01 भी आपको दिया गया है। देन देयर इज अ सेकंड रिएक्शन which is Fe2+ + 2 इलेक्ट्रॉन is giving Fe, ठीक है, इसको आप E02 बोल लो, ये भी आपको दिया गया है। एंड देन आपसे थर्ड रिएक्शन है which is Fe3+ + 3 इलेक्ट्रॉन is giving Fe, ये आपसे पूछा जा रहा है, इसका E0 आपसे पूछा जा रहा है। सो एज यू कैन सी फ्रॉम द अबव reactions that third reaction is actually equal to 1 plus 2, second reaction. So you can write delta G0 3 is equal to delta G0 1 plus delta G0 2, and this will be minus N3 F E0 3 minus N1 F E0 1 minus N2 F E0 2। यहाँ पे N जरूर नोटिस कर लेना, यहाँ पर N1 रहेगा आपका 1, यहाँ पर N2 रहेगा 2 and N3 रहेगा 3। Just substitute these and get the answer. Okay. $37th क्वेश्चन का आंसर मैच नहीं कर रहा है। That is something which is it the case with other students as well? 37th का आंसर मैच नहीं कर रहा है despite following the same method. हाँ, सो मैच कर रहा है लोगों का। भाई अब दोबारा कैलकुलेशन करो, जिसका भी मैच नहीं कर रहा है, बाकी सबका तो हो रहा है। ठीक ठीक ठीक, थैंक्स गाइस। Okay, so this was the 40th question. Okay, now let's move on to the 44th question. Okay, राइट। सो अब इस क्वेश्चन के लिए वापस से, जैसे मैंने आपको बोला ना कि नर्स इक्वेशन क्वेश्चंस के लिए आपको वही स्टेप बाय स्टेप मेथोडोलॉजी यूज करनी है, राइट। सो यू स्टार्ट विद स्टेप 1, राइट डाउन द रिएक्शन। अब इस केस में एक्चुअली आपके सामने रिएक्शन दिया हुआ है, तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आई। ओके, देन दिस इज गिविंग 3Ag plus NO plus 2H2, ठीक है, ये गैस है, ये एक्वस है, ये एक्वस है, ये एक्वस है, ये सब मेंशन करना चाहिए, फिजिकल स्टेट्स आर इम्पोर्टेंट। अब इसमें आप नोटिस करोगे तो Ag 0 से +1 जा रहा है, नाइट्रोजन +5 से +2 जा रहा है, ठीक है। सो व्हेन यू वुड try to think of that how is this L reaction being formed by adding anode and cathode, तो आपको realize होगा that 3 इलेक्ट्रॉन्स का कैंसिलेशन होके ये रिएक्शन बन रहा होगा, ठीक है। दिस इज समथिंग जो आप ढंग से समझ लो अभी, ठीक है, कि अगर रिएक्शन आपके सामने सामने लिखा हुआ है तो उसमें आप N कैसे निकालोगे। यू लुक एट द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट्स, सिल्वर 0 से +1 जा रहा है, एक का चेंज आ रहा है, और यहाँ पर आप देखोगे तो 3 सिल्वर जा रहे हैं, तो नेट 3 इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपने ये N फिगर आउट करा, दिस इज समथिंग important. So you have to figure out by looking at change in oxidation state, ठीक है। And as part of the step 2 which is about calculating Q, तो ये एक्सप्रेशन आपका इक्वेशन देख के बन जाएगा, Ag+ का क्यूब इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ NO, अभी वाटर तो लिक्विड है तो उसका तो एक्टिविटी नहीं लेंगे, अपॉन NO3 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर ऑफ 1 एंड H+ का कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर ऑफ 4। तो ये आपका Q का एक्सप्रेशन आ गया है, ठीक है।
right? So I'll explain. So there is one doubt that is coming from students that can you explain how we found n again? So ये actually यहाँ पे वापस से ध्यान से नोटिस करना, सिल्वर 0 से +1 जा रहा है तो ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज कितना हो गया 1 का, एंड आप नोटिस कर रहे हो कि यहाँ पर 3 सिल्वर के एटम्स के बीच में ये चेंज हुआ होगा, ठीक है? सो इफ यू वुड हैव रिटन द हाफ रिएक्शंस फ्रॉम दिस, नो, मतलब आपको हाफ रिएक्शंस ऐड करके फुल रिएक्शन करना आता है, बट आप फुल रिएक्शन से भी हाफ रिएक्शंस लिख सकते हो, तो उसमें कैसा हो रहा होगा 3Ag would be giving 3Ag plus 3 electrons, ऐसा लिखा होगा। तो वो 3 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट करे जा रहे हैं when adding it with cathode, and that is why full cell reaction का n हम लोग 3 लिख रहे हैं, ठीक है? All right, now let's come to step 3, which was talking about E0 cell. So E0 cell, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा SRP cathode minus SRP anode, and again as you can see from cathode and anode, अभी रिडक्शन किसका हो रहा है नाइट्रोजन का, मतलब वो कैथोड है, यानी कि ये 0.96 होगा, और ऑक्सीडेशन हो रहा है सिल्वर का, मतलब ये एनोड है, तो ये आपका E0 सेल आ गया, ठीक है? आई होप फिगरिंग आउट एनोड एंड कैथोड वाज नॉट अ चैलेंज. This is something that you are able to now do easily. And now comes the step 4 where you apply the Nernst equation, right? अब आपको E सेल निकालना है, तो उसके लिए E0 रहेगा 0.96 माइनस 0.799 माइनस 0.059 अपॉन 3 इंटू लॉग, अब Q का एक्सप्रेशन आपने ऊपर से निकाल ही लिया है, Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है 0.01 रेज टू द पावर ऑफ 3, पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 आपको दिया हुआ है 0.2 atm, NO3 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन है 2 मोलर, एंड pH 1 दिया हुआ है, तो ये 10 की पावर -1 रेज टू द पावर ऑफ 4 है. So you do the calculation and you will get the answer of E. Okay, ठीक है. 45th and 46th. So 45th तो इनफैक्ट FBO से लिया गया है, मतलब सेम है, सेम एज FBO का. व्हाट वाज दैट क्वेश्चन? FBO में स्टार्टिंग में, अच्छा वैसे तो हम अभी भी FBO में ही हैं, बट लेट मी, ब्रोमीन वाला क्वेश्चन था ना यार, कहाँ गया वो? आपको लास्ट टाइम के होमवर्क में दिया था, या तो FBS में होगा. लेट मी जस्ट सी, नहीं FBS में भी नहीं है. अरे where did that go? 47th कह रहे हो आप? हाँ एक्चुअली 47th के जैसा ही है, ठीक है? तो ये 45 47 दोनों एक जैसे ही हैं, ठीक है? इसके लिए ऑब्जर्व करना, दिस वाज समथिंग जो मैंने क्लास एग्जाम्पल्स या रेफर वीडियो लेक्चर्स जब देखोगे उसमें ये सॉल्व भी करा हुआ है, एंड मैंने आपको बोला भी है कि आप इसको याद करना, कीप इट हैंडी. दिस वाज E0, ठीक है? SRP ऑफ मेटल, इसका डेरिवेशन भी करा है, insoluble salt electrode will be equal to E0 SRP of metal ion या metal soluble salt electrode plus RT by NF, RT by NF ln KSP of the insoluble salt. ये जो भी insoluble salt है उसका KSP यहाँ पे आ जाता है. So इस केस में आप देखोगे तो इसकी वैल्यू 0.1 डाली हुई है, ये आपका अननोन है, एंड 0.059 n का वैल्यू 2 दिख ही रहा है आप लोगों को, इनटू लॉग KSP है.
तो आई थिंक ये आपका बी ऑप्शन से मैच कर रहा है, 1/KSP, वो नेगेटिव साइन को आप अंदर ले लोगे तो, ठीक है। सो इसका डेरिवेशन क्लास नोट्स में है भाई, डेल्टा जी नॉट के पॉइंट ऑफ व्यू से करके बताया गया है, ओके। नाउ 46th क्वेश्चन, वापस से मतलब सेम स्टेप बाय स्टेप मेथोडोलॉजी, आपके सामने सेल रिप्रेजेंटेशन है, तो स्टेप 1 आप रिएक्शंस लिखो। एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, H2 gas is giving 2H plus aqueous plus 2 electron. कैथोड पर रिडक्शन होगा, and this will be Ag plus aqueous plus electron is giving Ag solid. When you add the two, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना पड़ेगा, you will get H2 gas plus 2 Ag plus aqueous is giving 2H plus aqueous plus 2 Ag solid. Now as you can see, स्टेप 2 के हिसाब से क्या आ जाएगा, n का वैल्यू 2 आ जाएगा, एंड q विल बी H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर अपॉन Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ H2, ठीक है। बाकी Ag तो सॉलिड है, तो आप इसको यूज करके आप स्टेप 3 पर आ जाओ। स्टेप 3 क्या है, E नॉट सेल विल बी इक्वल टू SRP कैथोड माइनस SRP एनोड। अब एनोड पर तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, तो उसका SRP तो 0 होगा, एंड कैथोड का SRP आपको दिया हुआ है 0.799, तो ये आपका E नॉट सेल आ गया। एंड नाउ जस्ट अप्लाई स्टेप 4 विच इज अबाउट E सेल। नेक्स्ट इक्वेशन अप्लाई कर देना है, E नॉट सेल माइनस RT बाय NF ln Q, राइट। सो विद ऑल थिंग्स mentioned here, E सेल आपको दिया हुआ है 1.05, E नॉट सेल 0.799 माइनस 0.059 अपॉन n का वैल्यू इसमें 2 आएगा, और ये हो जाएगा log H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन आपको 0.1 दी हुई है उसका स्क्वायर, एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 भी आपको दिया हुआ है 1 atm। तो इससे अब आप सॉल्व करके H प्लस निकाल लोगे, एंड उससे फिर pH आ जाएगा। सो ये आपका कंसिस्टेंट मेथोडोलॉजी हो गया, ठीक है। ऑलराइट, देन 47 तो जैसे मैंने बताया आपको अभी वैसा ही करना है। 49 एंड 50, ठीक है। सो 49 भी उसी तरीके से जाएगा जो अभी मैंने जस्ट आपको बताया, एक बार वापस से ट्राई करना, ठीक है। लेट मी नॉट 46 में क्या डाउट आ गया, 46 हम लोगों ने करा तो सही, आंसर मैच नहीं कर रहा, ऐसा नहीं है, इसका आंसर में कोई गड़बड़ नहीं है, बाकी लोगों का आंसर मैच कर रहा है 46 में। हाँ, आ रहा है लोगों का आंसर 40 से। आप लोग आंसर एक बार मैच नहीं करता है तो प्लीज डबल चेक करो ना, कहाँ गलती करी। आप लोग खुद की गलती नहीं आइडेंटिफाई कर पाओगे तो फिर उसको रेक्टिफाई कैसे करोगे, बाद में एग्जाम में सेम मिस्टेक करके आओगे। आंसर नहीं मैच कर रहा है तो पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट, ठीक है। 49 में सेम मेथड, सो आई विल लीव इट अप टू यू। N6 रहेगा, ठीक है। N6 कैसे रहेगा ये अभी समझ में आ रहा है, अल्यूमिनियम 0 से +3 जा रहा है और 2 एटम है, या फिर आयरन 2 से 0 जा रहा है और 3 एटम है, तो ये समझ में आया। एंड Q का एक्सप्रेशन आपके सामने है, Al3+ का स्क्वायर अपॉन Fe2+ का क्यूब, तो ये डेटा भी आपके सामने दिया हुआ है, इसको निकालो। एनोड क्या है कैथोड क्या आपको पता है, जस्ट फाइनली ई सेल आ जाएगा। सेम मेथड 50th क्वेश्चन में हाफ सेल पर भी तो नर्स इक्वेशन लगा सकते हो ना। नर्स इक्वेशन is applicable on
हाफ सेल एज वेल। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पोटेंशियल ऑफ Zn2+ के बारे में बात करा जा रहा है। ठीक है, ये E ऑफ Zn2+, तो इसका रिएक्शन क्या हो जाएगा, Zn solid giving Zn2+ aqueous plus 2 इलेक्ट्रॉन, ये हाफ सेल रिएक्शन है। अब इसके ऊपर आप नर्स इक्वेशन लगा सकते हो। इस पे आप नोटिस करोगे तो n का वैल्यू 2 है, Q इज Zn2+ कॉन्सेंट्रेशन एंड E नॉट सेल होगा कुछ। ठीक है, E नॉट सेल दिया नहीं है, बट देखना आगे काम की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, कट जाएगा वो। E सेल के ऊपर आपका फोकस करना है। E सेल विल बी इक्वल टू E नॉट माइनस 0.059/2 इंटू लॉग ऑफ Zn2+, ये आपका E रहेगा। तो अब नोटिस करना कि एक बार कॉन्सेंट्रेशन से C है तो उस हिसाब से E1 का एक्सप्रेशन ये हो जाएगा। अगर कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही है तो E का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा एंड इट इज बीइंग डाइल्यूटेड 10 टाइम्स, सो कॉन्सेंट्रेशन C/10 हो गया। ठीक है, नाउ इफ आई सब्ट्रैक्ट, आई डू E2 माइनस E1, तो ये E नॉट तो कट जाएगा एंड ये भी 0.059/2 लॉग, माइनस साइन बाहर था, दिस माइनस दिस, सो 1/10, so 0.059/2, roughly 0.03 with a positive sign। तो ये इंक्रीज हो रहा है ना, डेल्टा जो E2 माइनस E1 है वो आपका पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, that it is increasing and it is increasing by this much value। ठीक है, 57th, ओके 57th इज समथिंग जहां पे वापस से शायद आपको इक्वेशन रीड करने में थोड़ा सा चैलेंज फील हुआ होगा। तो सेल के रिप्रेजेंटेशन से इक्वेशन लिखना आना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड एनोड है, तो एनोड का रिएक्शन तो आपको पता है, H2 gas is giving 2H plus aqueous plus 2 electron, एंड राइट हैंड साइड पर SCE का मतलब क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड कैलोमर इलेक्ट्रोड। तो कैलोमर इलेक्ट्रोड, इनफैक्ट SCE का नॉर्मल कैलोमर इलेक्ट्रोड लिखा हुआ है, सो नॉर्मल कैलोमर इलेक्ट्रोड मतलब भी स्टैंडर्ड कैलोमर इलेक्ट्रोड ही है। तो ये इलेक्ट्रोड का हम लोग रिएक्शन कैसे लिखेंगे, रिडक्शन का, Hg2Cl2 solid plus 2 electrons is giving 2Hg liquid plus 2Cl minus aqueous। एंड अगर मुझसे आप ओवरऑल सेल रिएक्शन पूछोगे तो इनको मैं ऐड कर सकता हूँ, H2 gas plus Hg2Cl2 solid is going to give you 2H plus aqueous plus 2Hg liquid plus 2Cl minus aqueous। So if you ask me n का वैल्यू, स्टेप 2, n का वैल्यू निकाल लिया और q का एक्सप्रेशन हो जाएगा H प्लस का स्क्वायर इंटू Cl माइनस के कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ H2, बाकी सब सॉलिड लिक्विड है। नाउ अब द थिंग इज कि इसमें डेटा कैसा कैसा है यहाँ पे नोटिस करना आपको। pH, अच्छा इनफैक्ट ये निकालना है, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, Cl माइनस 1 मोलर है। ठीक है, दिस इज 1 मोलर, वाई, बिकॉज दिस इज अ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड। ठीक है, SCE स्टैंडर्ड कैलोमर इलेक्ट्रोड है, तो 1 मोलर कंडीशन में पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 के बारे में 1 atm बोला जा रहा है। ठीक है, तो अब अगर यहाँ पे आप आगे बढ़ के स्टेप 3 पर आओगे, E नॉट लिखना चाहोगे तो ये क्या हो जाएगा, SRP कैथोड माइनस SRP एनोड। एनोड तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है तो उसका SRP 0 रहता है, और कैलोमर इलेक्ट्रोड का प्लस 0.28। ठीक है, वाई, यहाँ पर बिकॉज SOP is given to you, SOP of calomel electrode is given to you as minus 0.28, तो SOP plus 0.28 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको फाइनल डिटेल्स क्वेश्चन से पिक करनी पड़ेंगी। नाउ कम टू द final step, apply Nernst equation, E cell will be equal to E naught cell
माइनस RT by NF ln Q। सो आपको 0.4747 E दिया हुआ है, E नॉट 0.28 है, माइनस 0.059/2 इंटू लॉग H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। ठीक है, ये Q का वैल्यू H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर है, 0.028, सॉरी नॉट 0.028, 0.28 प्लस 0.059 इंटू pH। इससे आपका pH का रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, 58 and 60. Okay, so let me put it here. This is also 58. कहाँ गया? This is 58 as well. Metal metal insoluble salt electrode और metal metal ion electrode और KSP के बीच का relationship. This is something that you have to use in these all questions consistently. ठीक है, हाँ कुछ डाउट है पूछो। ये H प्लस का स्क्वायर था ना, तो कट गया ना वो, ये 2 को मैं अंदर ले गया ना, ये जो 2 है इसको मैं अंदर लेके कैंसिल आउट कर दिया ना, स्क्वायर रूट हो जाएगा अंदर। ठीक है, ऑल राइट। 60th क्वेश्चन, ओके 60th क्वेश्चन पे देखना। 60th क्वेश्चन कैसा रहेगा? एक्चुअली ये तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आप लोग नोटिस करोगे तो सीधे नर्स इक्वेशन लिख देता हूँ मैं, E इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059। अभी अगर आप पूछोगे n कितना रहेगा इसमें, सो क्या आंसर रहेगा इसमें n का, बताओ इस इक्वेशन में 60th क्वेश्चन में। What will be the value of n? राइट, और लोग दो आंसर। नहीं क्षितिज तुम्हारा सही नहीं है, 2 इज द करेक्ट आंसर, काफी लोगों का आ गया है। वापस से आप नोटिस करो ना, ये कैसा है, Ag प्लस से Ag जा रहा है, एक का चेंज आ रहा है और 2 एटम्स हैं Ag के यहाँ पर, राइट। Ag इज गोइंग फ्रॉम +1 to 0, 1 का चेंज है और 2 एटम्स हैं उसके, तो यहाँ पर n का वैल्यू 2 लिखना पड़ेगा, और लॉग के अंदर क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा अभी, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर अपॉन Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, राइट। हाँ तो क्षितिज तुमने आंसर मुझे 3 दिया था, ऊपर चेक करो। अरे नहीं नहीं बाबा वैसे नहीं, ओके मतलब वैसे नहीं करते हैं। ओके, यहाँ पे ध्यान से ऑब्जर्व करना, 2Ag plus aqueous plus H2 gas is giving 2Ag solid plus 2H plus aqueous. So either you look at the species which is undergoing oxidation, ठीक है, or you look at the species which is undergoing reduction, दोनों में से किसी एक को पिक कर लो। ये +1 से 0 जा रहा है और ये 0 से +1 जा रहा है, दोनों के केस का आंसर सेम ही रहेगा, दोनों के केस में N2 आएगा। आप देखो ना इनके हाफ रिएक्शंस कैसे रहेंगे, एनोड पर रहेगा Ag plus aqueous plus electron is giving Ag solid, and कैथोड पर रहेगा H2 gas is giving 2H plus aqueous plus 2 electrons। तो आपको इससे मल्टीप्लाई बाय 2 करके ऐड करना पड़ेगा, तो आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट होंगे ना, 2 electrons cancel out on either side, that is what your n का value will be।
ठीक है, दोनों को ऐड नहीं करते हैं, ये तुमने मुझसे लास्ट टाइम भी पूछा था। ऑल राइट, सो यहाँ पर कमिंग बैक सो एज यू कैन सी यहाँ पे Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन आपको 1 मोलर दिया हुआ है। ठीक है, तो 1 मोलर देने के बाद में क्या बच जाएगा इफ यू टेक इट डाउन हेयर, सो E विल बी इक्वल टू E नॉट, देन माइनस 0.059, और वापस से वही चीज़ जैसे पहले मैंने करा था, वो 2 को मैं अंदर लेके चला जाऊंगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, एंड इट विल बिकम माइनस लॉग एच प्लस ओ पी एच बन जाएगा। तो आपका ग्राफ कुछ ऐसा रहेगा, E वर्सेस पी एच का, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन with a slope 0.059 and intercept being E naught. ठीक है, so these are the FBO questions. Now let's move to the FBS questions. ठीक है, अगर आपको लग रहा है थोड़ा जल्दी हो गया कोई क्वेश्चन तो feel free to ask doubts in between. It's absolutely fine. This is something जहाँ पर काफ़ी fundamental numerical questions आप लोगों के सामने आए हैं. All right, so FBS में I had asked you to do 8 से लेकर 21. All right, so okay, is there some doubt? ठीक है, FBS में हाँ राइट, पिछली बार आप लोगों का FBS में पुराने क्वेश्चंस डिस्कस नहीं हुए थे. ओके, all right, so let me actually take those FBS questions as well. Okay, so साई का डाउट है SRP of HgCl2 is 0.28. मतलब पहली बात तो कैलोमल इलेक्ट्रोड जो है वो Hg2Cl2 है. ठीक है, HgCl2 अलग कंपाउंड है और Hg2Cl2 अलग कंपाउंड है. तो अगर आप कैलोमल इलेक्ट्रोड का पूछ रहे हो, राइट, कैलोमल का ही पूछ रहे हो ना? हाँ, तो कैलोमल का SRP का वैल्यू मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, आई थिंक 0.24 था या 27, हाँ ये 0.27 या 0.28 ऐसा ही कुछ था. ठीक है अर्जुन, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कैलोमल इलेक्ट्रोड का इक्वेशंस लिखवाया था. ठीक है, एक बार नोट्स जाके रेफर करो, क्लास नोट्स में, अगर वीडियो भी नहीं देखना है तो क्लास नोट्स में देखो, वहां पे आपको मिलेगा. ऑल राइट, सो FBS का क्वेश्चन नंबर 10 की जगह लेट मी एक्चुअली स्टार्ट विद द, आप लोगों का स्टार्टिंग का पार्ट रह गया था ना FBS का. So FBS में some of you have put in questions like question number 1 and 3 and 4 and 5 and 6. अच्छा, बचा क्या? सेकंड क्वेश्चन है, क्या बिगाड़ा हो तुम्हारा? सेकंड छोड़ दिया तुमने. सी फर्स्ट क्वेश्चन में सी आपको ये अभी हाफ सेल रीड करने अगर नहीं आया तो थोड़ी सी दिक्कत रहेगी. या हाफ सेल के रिप्रेजेंटेशंस को रीड करना आना चाहिए आपको. जैसे फर्स्ट ऑप्शन है तो उसमें प्लैटिनम इनर्ट इलेक्ट्रोड हो गया, and there is Ti3 plus and Ti4 plus ions that are given. तो ये इस साइड पे क्या हो गया? This is redox electrode. ठीक है, सोल्यूशन के अंदर ही सब रिएक्शन हो रहे हैं. एंड राइट हैंड साइड पर अगेन यू हैव Fe3 plus and Fe2 plus. So in that again as you can see यहाँ पर प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है और ये आयंस है, एक्वस आयंस Fe2 plus and Fe3 plus के. तो वापस से ये आपका रिडॉक्स इलेक्ट्रोड ही हो गया. तो आपने इलेक्ट्रोड आइडेंटिफाई कर लिया.
अब आपको रिएक्शन लिखना है। एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, तो ये Ti3+ एक्वस से Ti4+ एक्वस जा रहा होगा बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन, एंड कैथोड पर रिडक्शन हो रहा है, सो Fe3+ will be adding 1 electron to go into Fe2+, straightforward है। बी क्वेश्चन में अगेन Pb solid, PbSO4 solid, राइट। ये इसका सॉलिड क्या इंडिकेट करता है, दैट दिस इज एन इनसॉल्युबल सॉल्ट, एंड देन दिस इज डिप्ड इन द aqueous solution of the anion। तो ये वाला साइड is something that you can understand, this is metal and metal insoluble salt electrode। यहाँ पर कैसा है, जिंक 2+ है aqueous, और ये जिंक सॉलिड है। तो ये क्या हो गया आपका, ये सिंपल मेटल हो गया जिंक, और उसका Zn2+ आयन है, मतलब मेटल आयन बोल लो या मेटल सॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड बोल लो, राइट। सो वापस से रिएक्शंस काफी सिंपल से रहेंगे। एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, सो Pb सॉलिड विल कंबाइन विद FSO4 2-, ठीक है। Pb का ऑक्सीडेशन होगा ना, Pb 0 से +2 जाएगा, so it will go to PbSO4 solid +2 electron, and कैथोड पर रिडक्शन होगा, zinc 2+ aqueous +2 electrons is going to go to zinc solid, ठीक है। इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। ये 2 क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करके बता दिए, दिस शुड बी इनफ। बाकी आप ट्राई करो। सी क्वेश्चन में आई जस्ट दिस इज कैलोमर इलेक्ट्रोड की तरह है एनोड पे, तो ये वाला सी में मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट है, एंड राइट हैंड साइड पर दिस इज गैस आयन इलेक्ट्रोड। डी में एनोड पर रिडॉक्स इलेक्ट्रोड है, और कैथोड पर एज यू कैन सी मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट, ठीक है। एनोड पर यहाँ पर Q जो है क्विनॉन, वो क्या है, हो रहा है -2 से 0 जा रहा है, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। तो आप लिख सकते हो आराम से। सेकंड क्वेश्चन में सिंपल ही है, बस मैं डी वाला पार्ट बता देता हूँ। डी वाले पार्ट में कैसा है, FeCN6 और ब्रैकेट में लिखा है 3-, तो इसका मतलब क्या हो गया, आयरन +3 स्टेट में है, ठीक है। +½ H2 गैस इज गिविंग FeCN6 4-, 4- का मतलब क्या हो गया कि आयरन +2 में आ गया है, इज गिविंग H+ aqueous, राइट। सो हाइड्रोजन के साथ में कैसा हो रहा है, हाइड्रोजन इज गोइंग फ्रॉम 0 to +1, राइट। सो दिस इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, यानी कि ये आपका एनोड रहेगा, एंड दिस इज अंडरगोइंग रिडक्शन, मतलब ये आपका कैथोड रहेगा। सो अकॉर्डिंगली अब आप इसका सेल का रिप्रेजेंटेशन लिख सकते हो कि यहाँ पर बोथ एक्वस स्पीशीज हैं, ठीक है, बोथ एक्वस स्पीशीज। तो इसका मतलब एक्वस स्पीशीज के अंदर रिएक्शन हो रहा है, मतलब ये कैसा इलेक्ट्रोड हो गया, ये रिडॉक्स इलेक्ट्रोड हो गया, ठीक है। एंड यहाँ पर कैसा है, एक गैस और एक आयन है, तो ये गैस आयन इलेक्ट्रोड हो गया। अब इनका रिप्रेजेंटेशन लिख लो। सॉल्ट ब्रिज, एनोड पर आप लिखोगे गैस आयन, तो H2 गैस से H+ आयन जाना है, तो लेफ्ट टू राइट ऐसे लिखना है, और लेफ्ट में इनका इनर्ट इलेक्ट्रोड मेंशन कर दो। वेराज ये रिडॉक्स स्पीशीज में भी कैसा होगा, हम लोग Fe3+ से Fe2+ जाएंगे, तो पहले लिखो FeCN6 3-, फिर उसके बाद नंबर आएगा FeCN6 4- का, ठीक है। ये दोनों एक्वस फेज के अंदर ही हैं, एंड फिर उसके बाद एक वर्टिकल लाइन लगा के आप यहाँ पर भी एक इनर्ट इलेक्ट्रोड रहती है, तो वो प्लैटिनम इनर्ट इलेक्ट्रोड दिखा दो, ठीक है। सो दिस इज समथिंग विच इज द सेकेंड क्वेश्चन का डी पार्ट। नाउ थर्ड क्वेश्चन में बी ऑप्शन में बता सकता हूँ, बाकी सारे आपसे हो जाने चाहिए इसी लाइंस पर। तो अब यहाँ पर आप रिएक्शन देखो, ऐसा बोला गया है ना, O2
O2 gas oxidizes AuCN2 माइनस को, ठीक है। तो मतलब ये वाला पार्ट जो है ये अंडर ऑक्सीडेशन जाएगा, तो ये एनोड पे रहेगा और ऑक्सीजन गैस खुद रिड्यूस होगा तो ये कैथोड पे रहेगा। तो बस अब आपको सिंपली ई नॉट सेल इज इक्वल टू एस आर पी कैथोड माइनस एस आर पी एनोड यूज करना है। तो यहाँ पर एनोड पर आपका सॉरी कैथोड पर आपका ऑक्सीजन वाला है तो ये 0.4 हो गया, और एनोड पर आपको इसका एस आर पी दिया हुआ है तो वो माइनस 0.6 दिया हुआ है, तो ये आपका 1 वोल्ट आंसर आ गया, ठीक है। बाकी ऑप्शंस भी आप इसी तरीके से कर लेना, ठीक है। पॉजिटिव ई नॉट इज पॉजिटिव इंप्लाइज क्या हो जाएगा, सेल इज स्पॉन्टेनियस, ठीक है, सेल इज स्पॉन्टेनियस अंडर स्टैंडर्ड स्टेट, ठीक है। अदरवाइज अगर हमें जनरल स्टेट में कंपेयर करके बताना होता है कि सेल स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है तो हम ई के बेसिस पे कमेंट करते हैं, नॉट ई नॉट, ठीक है। Then fourth question is also quite similar to what we have done. आप इक्वेशंस को ऐड सब्ट्रैक्ट करो और उसके बेसिस पे बताओ। अच्छा नहीं, इनफैक्ट इसमें तो हाँ ठीक है ना, मतलब ओके तो काफ़ी सिंपल है। फोर्थ तो CE4+ से कहाँ जा रहा है, CE3+ में जा रहा है, तो आपको बस ये आइडेंटिफाई करना है, ये 0 से +2 जा रहा है कोबाल्ट तो ये एनोड हो गया, एंड सीरियम +4 से +3 जा रहा है रिड्यूस हो रहा है तो ये कैथोड हो गया। अब आपको बस फॉर्मूला में करेक्टली लिख देना है, ई नॉट सेल इज इक्वल टू एस आर पी कैथोड माइनस एस आर पी एनोड, राइट। सेम सेम ये फिफ्थ क्वेश्चन भी सेम एज अबव, आपको पता पड़ रहा है किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन, एंड अकॉर्डिंगली आपको आंसर करना है, राइट। सिक्स्थ क्वेश्चन में कैसे आंसर करोगे, लोअर एस आर पी, ठीक है, विद साइन, acts as anode and higher SRP with sign acts as cathode। तो इसके बेसिस पे आपको पता पड़ जाएगा एनोड कैथोड क्या है, सब पुट करो और आंसर निकालो। सेवेंथ क्वेश्चन में ये वैसे ही आयरन वाली मेहनत करनी पड़ेगी जो आपने अभी थोड़ी देर पहले मुझसे एफ बी ओ के क्वेश्चन में कराया था। Tl++ इलेक्ट्रॉन इज गिविंग Tl, ये पहला रिएक्शन है और इसका E01 भी आपको दिया हुआ है, इसका N1 भी 1 रहेगा। दूसरा रिएक्शन जो है उसका नोटेशन देखिए, Tl3++2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Tl+, इसका E02 भी आपको दिया हुआ है और इस केस में N2 रहेगा। देन तीसरा रिएक्शन जिसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तीसरा रिएक्शन जिसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है दैट इज 3Tl+ is giving 2Tl plus Tl3+, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। इसका n बता पाओगे मुझे, ऑल्दो देखा जाए तो ये डिस्प्रपोर्शनेशन हो रहा है यहाँ पर, बट फिर भी आप n तो बता ही सकते हो। ना ही 3 सही है ना ही 6 सही है, दोनों ही गड़बड़ है। इसको आप देखो ना, ये कैसे, इसका 2 हाफ्स फिगर आउट करने की कोशिश करो, या तो नहीं नहीं 4/3 भी नहीं है। 4/3 क्या करा है, n फैक्टर निकाल लिया क्या,
वो 1/n फैक्टर रिडक्शन प्लस 1/n फैक्टर ऑक्सीडेशन से। जिसने 4/3 आंसर दिया है, नहीं इसका आंसर देखो ना 2 रहेगा। यहाँ पर कैसा है, दिस इज समथिंग नोटिस करना ना, Tl+1 से Tl3+ जा रहा है, +2 इलेक्ट्रॉन, ये आपका इसका एनोड हाफ रहेगा। और अगर आप कैथोड हाफ फिगर आउट करोगे तो वो क्या रहेगा, Tl+ से Tl++ इलेक्ट्रॉन इज गिविंग Tl, ये इसका कैथोड हाफ है। तो अब आप नोटिस करो ना कि इससे ओवरऑल रिएक्शन कैसे बन रही है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करा और ऐड कर दिया, तो ये मेरा ओवरऑल रिएक्शन दे देगा ना। और कितने इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट ऑन आइदर साइड, मेरा n का वैल्यू 2 आएगा। ठीक है, ये मतलब थोड़ा सा ट्रिकी रहता है। हाँ, विजेता ने सही आंसर दिया था। ठीक है यार, आई विल गिव यू एन एक्नॉलेजमेंट ऑन द पब्लिक फोरम। 3 चेयर्स फॉर विजेता। शुरू करें हम। ऑल राइट, नाउ थोड़ा सा ट्रिकी था, n = 2 निकाल लिया आप लोगों ने। अब आप बस इसमें मैनिपुलेट करो, मतलब इनसे आपको क्या दिख रहा है, एज यू कैन सी, मतलब या तो आप इसमें, अच्छा ये तो मैंने एक्चुअली लॉन्ग तरीका बता दिया आपको मेहनत करने का, कि आप इसमें लॉन्ग तरीका जो यूज करोगे तो उससे आपको दिखेगा दैट जो थर्ड इक्वेशन है 3 इज इक्वल टू 3 is equal to 2 times 1 minus 2, ऐसा करने से आएगा। ठीक है, 3 is equal to 2 times 1 minus 2 करने से, ये लॉन्ग तरीका हो गया। इससे आप करोगे तो आंसर आ जाएगा। और what you could have seen is that E naught cell is equal to SRP cathode minus SRP एनोड, आप ये भी लिख सकते थे। ठीक है, क्योंकि सेल रिएक्शन ऊपर के रिएक्शंस में एक ये वाला एनोड पर हो रहा है और इसका ऑपोजिट वाला, ये सेकंड वाले का ऑपोजिट वाला कैथोड पर हो रहा है, तो आप उसको भी यूज कर सकते हो, SRP कैथोड माइनस SRP एनोड। सो ये आपका सिंपली E नॉट ऑफ 2 माइनस E नॉट ऑफ 1, ये आपका शॉर्ट सोल्यूशन हो गया। दोनों से सेम ही आंसर रहेगा। ओके, नाउ लेट्स कम टू द न्यूअर डाउट्स। अब आप में से किसी ने 10th क्वेश्चन पूछा है, सो 10th क्वेश्चन ऑब्जर्व करना। राइट, 10th अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी है। तो उसमें what you have to do is look at the reactions that are there in front of you. पहला रिएक्शन आपको दिया हुआ है 2H2O plus 2 electrons is giving H2 gas plus 2OH minus aqueous। ठीक है, ये रिएक्शन है। इसका E01 भी आपको दिया हुआ है। ठीक है, अगर आप N1 पूछोगे तो वो 2 रहेगा। सेकेंड रिएक्शन जो है, जो आपसे पूछा जा रहा है, दैट इज 2 times H2O liquid is giving H3O plus aqueous plus OH minus aqueous। अब ये चीज़ ना मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ दैट H3O plus and H plus are the same thing। ठीक है, सो इसकी वजह से अब मैं इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करने की जगह मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, कैन बी rewritten as simply H2O liquid giving
H प्लस एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस। ठीक है, आपसे इसका डेल्टा G नॉट या फिर K पूछा जा रहा है। ठीक है, और थर्ड इक्वेशन जो कि आपके काम आएगी, जिसका यहाँ पर इंफॉर्मेशन नहीं है बट दैट इज द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का कन्वेंशन होता है हमारा, दैट H2 गैस इज गिविंग 2H प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। इसको हम लोग E03 बोल देते हैं, विच इज 0, एंड इसको N3 बोल देते हैं, इसका N3 2 रहेगा। सो इफ यू लुक एट दीज थ्री रिएक्शंस, आपको दिखेगा दैट अगर मैं फर्स्ट एंड थर्ड रिएक्शन को ऐड कर दूं तो वो 2 टाइम्स ऑफ सेकेंड रिएक्शन बना देंगे। ठीक है, इफ आई ऐड, ये मैनिपुलेशन अब इक्वेशन लिखने के बाद ही दिखता है, ऐसा नहीं स्टार्टिंग में दिख जाएगा। जब आप इक्वेशन लिखोगे तो उसके बाद ही मैनिपुलेशन दिखेगा, दैट 2 टाइम्स, इनफैक्ट फर्स्ट और थर्ड को ऐड करोगे तो सेकंड दिखेगा। आप कुछ और तरीके से भी कर सकते थे, बट दिस इज समथिंग व्हिच बिकम्स क्लियर टू सी। तो यहाँ पर आप लिख दोगे 2 टाइम्स डेल्टा G नॉट 2 इज इक्वल टू डेल्टा G नॉट 1 प्लस डेल्टा G नॉट 3, राइट। इसको तो अपन 0 बोल चुके हैं, है ना। अब यहाँ का आप देख लो, डेल्टा G नॉट 1 और NF E नॉट, ये हो जाएगा माइनस 2 इंटू F इंटू E नॉट 1। तो ये आपका डेल्टा G नॉट 2 का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, दिस विल कम आउट टू बी माइनस ऑफ 96500 इंटू हाँ, अलग अलग तरीके से कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, तरीके अपने अपने हो सकते हैं, आई डोंट माइंड। ठीक है, तो ये माइनस 0.8277 आप निकालोगे तो इससे आपका आंसर आ जाएगा, एंड दिस थिंग कैन ऑल्सो बी रिटन एज माइनस RT ln K, तो इससे आपका K भी आ जाएगा। ठीक है, ये आपका 10th क्वेश्चन हो गया। देन 12th एंड 13th, 12th आसान है, जस्ट आपसे K पूछा जा रहा है। ये रिएक्शन होगा ना जिंक को, जब आप CuSO4 के एक्वस सोल्यूशन में डाल दोगे तो ZnSO4 एक्वस प्लस Cu सॉलिड रहेगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा, which can also be written as this because these salts are soluble salts. तो अगर आपको इसमें Q का एक्सप्रेशन देखना है, N का वैल्यू तो 2 है ही सही, Q का एक्सप्रेशन हो जाएगा Zn2 प्लस अपॉन Cu2 प्लस, राइट, एंड K का एक्सप्रेशन हो जाएगा Zn2 प्लस एट इक्विलिब्रियम अपॉन Cu2 प्लस एट इक्विलिब्रियम। तो एक्चुअली इसकी तो ज़रूरत है नहीं, एन की नर्स इक्वेशन वगैरह लगानी नहीं है इसमें। इसमें बस आपको यही देखना है कि E नॉट सेल इज इक्वल टू SRP कैथोड माइनस SRP एनोड, एंड E नॉट सेल इज समथिंग दैट यू कैन राइट एज RT by NF ln K, RT by NF ln K is equal to E नॉट सेल is equal to SRP cathode minus SRP anode। ठीक है, ये आपका आंसर आएगा। ओके, 13th क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन में ध्यान से ऑब्जर्व करना, पूरा क्वेश्चन नहीं करूंगा, बहुत टाइम लगेगा 13th क्वेश्चन को करने में। सो आई विल जस्ट क्विकली टॉक अबाउट द अप्रोच ऑफ द क्वेश्चन इटसेल्फ। ठीक है, नाउ
13th क्वेश्चन में नोटिस करना MnO4 माइनस से MnO4 2 माइनस, देन वहां से MnO2, देन Mn+3, देन Mn+2 एंड देन Mn के बारे में बात हो रही है। तो इफ यू लुक एट द ऑक्सीडेशन स्टेट्स चेंजिंग, तो मैंगनीज कैसा जा रहा है, +7 से +6, देन +6 के बाद में +4, +4 के बाद में +3, +3 के बाद में +2 एंड दिस इज 0। ऑलराइट, सो अब आप नोटिस करना यहाँ पर आपको E01 दिया हुआ है और ये N1 जो है वो 1 रहेगा, ठीक है। देन ये E02 दिया हुआ है एंड यहाँ पर जो N2 है वो 2 रहेगा क्योंकि +6 से +4 जा रहे हो, ठीक है। थर्ड वाले का E03 है और इसका N1 रहेगा वापस से क्योंकि +4 से +3 जा रहे हो। देन इसका E04 आपको दिया हुआ है एंड ये N4 भी 1 रहेगा क्योंकि +3 से आप +2 जा रहे हो। एंड ये E05 में N5 आपका 2 रहेगा क्योंकि आप +2 से 0 जा रहे हो, राइट। सो विद दिस नाउ अब आपको पूछा जा रहा है MnO4 माइनस से सीधे Mn+2 जाने की बात हो रही है। तो एक्चुअली में दिस रिएक्शन, ठीक है, दिस रिएक्शन इज एक्चुअली अ सम ऑफ 1 + 2 + 3 + 4, ठीक है। इन सब का कॉम्बिनेशन हो गया, ये फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप और फोर्थ स्टेप मिलाकर ये वाला स्टेप बनेगा। तो अब यहाँ पर नोटिस करना इन सबका NF E0 मतलब डेल्टा G0 को ऐड करना पड़ेगा ना, डेल्टा G01 + डेल्टा G02, डेल्टा G03, डेल्टा G04, ठीक है। इसको अपन E0 बोल देते हैं और इसका N जो रहेगा वो कितना रहेगा, +7 से +2 जा रहा है ना, इसका N 5 रहेगा, ठीक है। सो दिस डेल्टा G0 is actually a sum of these two, so -5f E0 is equal to -1f E01 -2f E02 -1f E03 and -1f E04, ठीक है। बाकी सभी N1 ही थे, सिर्फ 2 का 2 था और फिफ्थ वाला तो खैर अभी काम आ नहीं रहा है। तो यहाँ से आप E0 का वैल्यू निकालोगे, ये समझ में आया। This is where you will get the value of E0 for MnO4 minus to Mn2 plus, ठीक है। Similarly, calculate E0 for MnO4 2 minus से Mn+2 का, ठीक है। पूरा सेम वही मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन अलग रहेगा। नाउ जिसका SRP हायर है, हायर SRP, वो आपका स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहेगा। तो इतनी मेहनत करने के बाद में आपको 13th के A और B पार्ट दोनों का आंसर मिलेगा, ठीक है। सो दैट इज समथिंग अ ट्रिक काइंड ऑफ क्वेश्चन इन इटसेल्फ, मतलब ट्रिक क्या मतलब लेंथी क्वेश्चन बोलना चाहिए मुझे, ठीक है। नाउ 14th क्वेश्चन आपने पूछा है। सो 14th में आप लोग कैलकुलेट करोगे तो किस तरीके से वर्क करेगा। आपके सामने सेल रिप्रेजेंटेशन है तो वही आपको स्टेप्स फॉलो करना है, ठीक है। फॉलो द मेथोडोलॉजी जो मैंने आपको बताई है, बस आपका आंसर आ जाएगा। आपको रिएक्शन लिखना है इसमें, तो रिएक्शन हो जाएगा Fe solid plus Cu2 plus aqueous is giving Fe2 plus aqueous plus Cu solid। So N का वैल्यू 2 रहेगा
एंड क्यू का वैल्यू Fe2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन Cu2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन विच इज 10 E naught will be equal to SRP cathode माइनस SRP एनोड। अब ई सेल आप निकाल लो। ठीक है, सो दैट्स इट। हाँ, सी पार्ट थोड़ा सा मे बी आप लोगों ने अभी लेक्चर 4 देखोगे ना तो समझ में आ जाएगा। ये लेक्चर 4 के अंदर डिस्क्राइब किया हुआ है। दिस इज समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एज कॉन्सेंट्रेशन सेल। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये आप लेक्चर 4 देखोगे तो उसके बाद ही डाउट नहीं बचेगा। अभी के लिए आपको शायद थोड़ा सा डाउट लगेगा कि सर सॉल्ट ब्रिज कहाँ गया, कैसे करा, तो एक बार इसको लेक्चर 4 ऑब्जर्व करना, फिर अपने आप चला जाएगा। इट्स अ स्ट्रेट फॉरवर्ड डाउट। 16th क्वेश्चन, सेम स्टेप्स सेम मेथोडोलॉजी जैसा मैंने ऊपर करा, एकदम सेम मेथड एज 14th, कुछ भी अलग नहीं है इसमें। सेवनटीन्थ, तो ये हाफ सेल के ऊपर नष्ट वो लगा दो ना। अभी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बारे में बात करा जा रहा है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के हिसाब से रिएक्शन लिखो। इट विल बी Cu सॉलिड गिविंग Cu2 प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। ये इसका इक्वेशन हो जाएगा। N का वैल्यू 2 रहेगा और Q का वैल्यू Cu2 प्लस रहेगा। ठीक है, एंड E नॉट इस केस में आपको दिया हुआ है माइनस 0.34 वोल्ट, तो E क्या हो जाएगा, तो अपने इक्वेशन से निकाल लो। E will be equal to E naught minus 0.059 by 2 into log Cu2 plus का concentration। बस इसको आप जीरो इक्वेट कर दो। मतलब आपसे पूछा है ना कि कब पॉजिटिव होगा, तो मतलब लिमिटिंग केस के हिसाब से कैलकुलेट कर लो कि जब जीरो हो रहा होगा तो आप आंसर कर दोगे। अच्छा, 16th क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में डाउट है आपको, दैट व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द सेल ईएमएफ। अगर आपका ई सेल पॉजिटिव आ रहा है तो स्पॉन्टेनियस मतलब जैसा लिखा है वैसे ही सेल चलेगा, एज इन यू आर गोइंग टू गेट टिन वाला कंपार्टमेंट एनोड की तरह बिहेव करेगा और लेड वाला कंपार्टमेंट कैथोड की तरह बिहेव करेगा, अगर आपका ई सेल पॉजिटिव आ रहा है। अगर 16th वाले क्वेश्चन में आपका ई सेल जीरो आ जाता है तो इसका मतलब आ जाएगा कि सेल का जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम पे आ चुका है। अगर आपका ई सेल नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपको एनोड और कैथोड स्विच करके देखने पड़ेंगे। फिर लेड का कंपार्टमेंट एनोड की तरह एक्ट कर रहा होगा और टिन का कंपार्टमेंट कैथोड की तरह एक्ट कर रहा होगा। ठीक है, सो दैट इज द इन्फरेंस दैट यू कैन गेट फ्रॉम कैलकुलेटिंग ईएमएफ वैल्यूज। ठीक है, ओके, देन 18th। हाँ, 18 थोड़ा सा एक कैच ये है इसमें, 20% डिसोसिएटेड। सो सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलर है एंड जिंक 2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इज 0.1 इंटू 20%। ठीक है, ऐसा क्यों? मे बी इट इज नॉट एन आयनिक सॉल्ट। ठीक है, कोवेलेंट कैरेक्टर वाला सॉल्ट होगा। इफ यू रिमेम्बर, ये मैंने आई थिंक आप लोगों को क्लास में भी बताया था कि आयनिक इक्विलिब्रियम में एक ऐसा था क्वेश्चन जहां पर सॉलिड से पहले एक्वस सॉल्ट जा रहा है। ठीक है, एंड देन उस एक्वस का फिर आप कटायन अनायन में डिसोसिएशन कर रहे हो। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी कुछ होगा। द ओनली थिंग दैट यू शुड फोकस इज Zn का कॉन्सेंट्रेशन क्या आ रहा है। अब आपको उसका E पूछा जा रहा है, हो जाएगा E नॉट माइनस 0.059 बाई 2 इंटू लॉग
1/Zn2+, राइट, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल्स हैं, ठीक है। आपको जो दिया गया है वो रिडक्शन पोटेंशियल ई नॉट दिया गया है, तो ये भी रिडक्शन पोटेंशियल ही पूछा जा रहा है, दैट इज वाई Q इज 1/Zn2+। आप डेटा पुट करो, आपको आंसर मिल जाएगा। Then 21st question. Okay, 21st question is same methodology, same steps. Try करोगे? जिसका भी डाउट था, सेम जो हम लोगों ने करा हुआ है वैसे आपको वर्क करना है, ठीक है। इसमें अब आप नोटिस करना ना, एनोड पर M solid is giving Mn plus aqueous plus N इलेक्ट्रॉन रहेगा, एंड कैथोड पर 2H plus aqueous plus 2 electrons is giving H2 gas, ठीक है। अगर मुझे इसको ऐड करना है तो let me multiply this by n/2, ठीक है। तो उससे सेल रिएक्शन बन जाएगी M solid plus N times H plus aqueous is giving Mn plus aqueous plus n/2 H2 gas, ठीक है। तो इससे आप नोटिस करना n का वैल्यू कितना आ जाएगा, n इज हेयर n/2, ठीक है। आई होप ये कंफ्यूजन नहीं हो रहा है, n हेयर इज n/2 बिकॉज इतने इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट हो रहे हैं, और जो Q का एक्सप्रेशन हो जाएगा वो हो जाएगा Mn प्लस का कॉन्सेंट्रेशन into partial pressure of H2 raised to the power of n/2 and denominator में H plus की concentration raised to the power of n, ठीक है। सो अब नहीं, n इलेक्ट्रॉन्स कहाँ कैंसिल आउट हो, ओ माय बैड सॉरी, n इलेक्ट्रॉन से कैंसिल आउट हो रहे थे, n/2 से मल्टीप्लाई करा था, n इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट हो रहे हैं, राइट। सो अब आप ई नॉट सेल के ऊपर फोकस करो। ई नॉट सेल कितना हो जाएगा, SRP कैथोड माइनस SRP एनोड, राइट। नहीं, सो ओके, साई का डाउट है कैन वी नॉट डायरेक्टली से दैट NH2, अरे ऐसा थोड़ी ना है कि इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट करने हैं तो N2 ही होगा, मतलब हो सकता है ना कि यहाँ पर ये Ag वाला इलेक्ट्रोड हो, Ag से Ag प्लस हो, तो आपको ऊपर फिर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो कांट से दैट, कांट अज्यूम n डायरेक्टली, मतलब आपने तो n ही अज्यूम कर लिया कि N2 है जो आपसे पूछा है क्वेश्चन में, ऐसा बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है। तो अभी यहाँ पर कोइंसिडेंटली हो सकता है आ रहा हो, बट दैट इज नॉट द केस। तो अब आप यहाँ पे नोटिस करना, आपको कैथोड का तो 0 रहेगा एंड एनोड के लिए -0.76 यूज करना पड़ेगा, वाई, बिकॉज SOP इज गिवन, ठीक है। तो SRP उसका नेगेटिव वैल्यू होगा, तो ई नॉट सेल आपका 0.76 वोल्ट आएगा। Now you can use E cell is equal to E naught minus 0.059 upon N into log Q. So this is given to be as 0.81, this is 0.76 minus 0.059 upon N into log of, यहाँ पर आपको सब डेटा दिया हुआ है, Mn plus की concentration into partial pressure of H2 raised to the power of n/2 and
दिस इज ऑल्सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस रेज टू द पावर ऑफ n. अब इसमें थैंकफुली द गुड थिंग इज दैट ये सब 1 है, ठीक है. वैसे तो मैं इस n को भी अंदर ले जा सकता हूँ, तो ये वाले n's कैंसिल आउट हो जाएंगे. यहाँ पर एक 1 बाय m, n प्लस के ऊपर एक 1 बाय n आ जाएगा बस. तो ये सॉल्वेबल है, इजीली सॉल्वेबल है. यू विल गेट टू सॉल्व द वैल्यू ऑफ n. So I am getting a question that E for a complete cell is always positive. हाँ, for a spontaneous cell E will always be positive. ठीक है. All right. Then 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 मतलब सारे ही पूछ लिए तुमने तो यार, कैसे नालायक हो तुम. 28 से लेकर 34 मतलब मैंने बोल क्या दिया कि डिफिकल्ट है, तुमने सारे डाल दिया. What rubbish. Okay, 2 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, then I'll give you a chance to resolve these questions again. ठीक है. Let me do 28 and 29. उसके बाद के सारे आप लोग दोबारा रिट्राई करना based on what you have learned today, and then we will give it a shot in the next lecture. So 28th is something similar to, in fact ये 28 तो हमने करा हुआ है ना अभी. कहाँ गया? FBO में क्वेश्चन करा था अभी जस्ट. कौन सा क्वेश्चन था वो? 57, सेम एज FBO का 57. मतलब आई थिंक डेटा भी शायद अलग नहीं है. ये 28 कहाँ गया? नहीं, डेटा थोड़ा सा अलग है, बट तरीका वही है, आप लोगों को वैसे ही फॉलो करना है. सो 29th में एक्सप्लेन कर देता हूँ. 29th में नोटिस करना जो HOCN है, HOCN is there to provide H plus. ठीक है. That is the only purpose of it. जो OCN minus ion है, this will be a spectator ion. ये कुछ नहीं करेगा, ये बस सॉल्यूशन में रखा रहेगा. सो आप नोटिस करोगे एनोड पर जो रिएक्शन हो रही है, that is simply this reaction. H2 is giving 2H plus aqueous plus 2 electrons. ठीक है. एंड कैथोड पर जो रिएक्शन हो रही है, that is again a simple reduction reaction of Ag plus plus electron is giving Ag solid. So if you add them together, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे, so you will get H2 gas plus 2 Ag plus aqueous is giving 2H plus aqueous plus 2 Ag solid. We'll get N का वैल्यू as 2 and Q का वैल्यू as H plus की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 अपॉन Ag plus की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर. Now this is something जहाँ पर ऊपर वाला तो आपको as in H plus का कॉन्सेंट्रेशन, अच्छा नहीं, आपको ये तो फाइंड करना है, my bad. H plus का कॉन्सेंट्रेशन आपको फाइंड करना है, जिससे आप Q निकालोगे. पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 1 atm दे रखा है एंड Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 0.8 दे रखा है. ठीक है. सो ई नॉट सेल के ऊपर भी आप फोकस करना. ई नॉट सेल विल बी SRP कैथोड माइनस SRP एनोड. दिस इज 0 एंड दिस इज समथिंग दैट इज गिवन टू एज 0.8. अब आप ई सेल लगा दो. नेक्स्ट इक्वेशन, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 by 2 into log H plus की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर अपॉन 0.8 की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर. ये 2 और ये 2 को काटो. ठीक है. जो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 है वो तो 1 ही था. ठीक है, तो उसकी जरूरत नहीं है कुछ भी. एंड ई सेल आपको दिया हुआ है एज 1.006.
नॉट इवन 006, 0006। ओ माय गॉड, इतनी एक्यूरेसी। ठीक है, तो फिर करो मेहनत। एंड दिस इज 0.8 एंड माइनस। ओके, सो यहाँ से आपका बेसिकली अब आयनिक का फॉर्मूला लगेगा, दैट log of H plus can be written as ठीक है, पहले आप H plus निकाल लो यहाँ से यार। H plus की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन 0.8, ठीक है, log का कैलकुलेशन खत्म करके H plus की कॉन्सेंट्रेशन निकाल लो, एंड दैट कॉन्सेंट्रेशन विल बी इक्वल टू रूट के इंटू सी। ठीक है, सो इट इज समथिंग इक्वल टू के इंटू सी। आपको दिया हुआ है 10⁻³ मोलर, तो इससे आपका के आ जाएगा। ठीक है, एंड आंसर चेक करने के पहले जरूर अप्रोक्सीमेशन चेक कर लेना, दैट ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब अप्रोक्सीमेशन वैलिड है, अल्फा इज मच मच लेस देन 1। ठीक है, तो एक बार के लिए जरूर चेक कर लेना। ठीक है, now having said this, I would want you to take more attempt at the additional questions that I have mentioned. नेक्स्ट लेक्चर का टारगेट देख लो यहाँ पर। नेक्स्ट लेक्चर का टारगेट एक तो ये रिमेनिंग डिस्कशन ऑफ FBS। ठीक है, कौन से क्वेश्चन हैं ये, 30 से लेकर आई थिंक 34 तक के। ठीक है, 34 या 34 ही पूछ ला तुमने तो ये मैं डिस्कस करूंगा। आप लोग एक बार दोबारा ट्राई करना अपनी तरफ से। देन another thing that will be required for you guys to do is प्लानर। वैसे तो मैंने आई थिंक वो आपकी गूगल शीट के अंदर ही लिख दिया था कि आपको नेक्स्ट होमवर्क क्या देखना है, बट लेट मी ऑल्सो राइट इट ओवर हेयर। सो वीडियो लेक्चर 4 आप देखना, इसमें ज़्यादा कंटेंट नहीं है, काफ़ी सारा डाउट डिस्कशन ही है। दैट इज समथिंग विच यू विल फाइंड देयर। एंड बुकलेट में, ठीक है, थोड़ा सा अब आपका एक्स्ट्रा होमवर्क मैं दे रहा हूँ इसमें। सो FBO में 51 से लेकर 55 तक के क्वेश्चंस, FBS में 22 से लेकर 27 क्वेश्चंस। ये कंसंट्रेशन सेल के ऊपर बेस्ड है बेसिकली। ये क्या होता है कंसंट्रेशन सेल, आपको लेक्चर 4 में समझ में आएगा। एंड देन गेट इक्विप्ड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लोग करो बेस्ड ऑन व्हाट वी हैव डन टिल नाउ। ठीक है, ये मिक्स है जो अभी तक अपन ने किया है पहले 4 वीडियो लेक्चर्स का। सो इट विल बी काइंड ऑफ अ गुड recap for you before we move on to electrolytic cells. तो ये get equipped के objectives हैं। then get equipped में passage 1 and 4 ये भी try करना। and then solved examples, ठीक है, solved problems करके एक section है। ठीक है, it is before FBO itself। अच्छे questions हैं and different questions हैं, they are quite different from the questions that are there in the exercises. So it's a collection of really really good questions। ये भी आप ट्राई करो। ठीक है, सो काफ़ी सारा होमवर्क है, बट गिवन द फैक्ट दैट अगली क्लास आपकी होपफुली अगले वीक ही होगी, तो कॉन्सेप्चुअली कुछ नया नहीं है। कॉन्सेंट्रेशन सेल जितना छोटा सा टॉपिक है, आप देखोगे तो आई वुड एनकरेज कि थोड़ा सा और प्रैक्टिस करो आप। एंड ये गैल्वेनिक सेल वाला पार्ट से आप कंफर्टेबल हो जाओगे तो फिर हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरफ मूव करेंगे। ऑलराइट, इसमें आपको कुछ कहना है, समथिंग यू वांट टू ऐड, सबट्रैक्ट, लेट मी नो।
ऑल राइट, इफ दिस इज देन यू आर गुड टू गो नाउ। अब आप लोग नेक्स्ट लेक्चर के लिए फोकस करो। वी विल मीट विद दिस डाउट डिस्कशन। ओके, चलो, थैंक यू गाइस।